So last session we learned about how to create object for 2D drawing and dimensioning and then manipulate command. So today we'll see some further command with the 2D and then manufacturing also we're going to start. So I'm planning for we're going to focus on the manufacturing, okay, for milling machine. Yes, sir. Because Mastercam basically we use for the VMC machine for die making and then face milling, profile milling, pocket milling, drilling operation for generating G code, M code, that is called a post processor file. So for that, what we need is 2D drafting and 3D solid modeling. We should know. Otherwise, we get these models and drawings from the customers, and then we do the manufacturing on the Mastercam. So last session, the drawing which we did on that only we can create a 2D profile, that is a counter mill or else a profile milling. Do you know about that? The profile milling क्या होता है? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। सपोज कोई पार्ट रहेगा उसको कट करना है. So just open we'll open this uh, whiteboard. Can you see the whiteboard? हम्म। यस सर। सपोज कोई ऐसा कोई प्रोफाइल रहेगा. ठीक है. So this is a plate of around 100 by 100 plate हम्म। and thickness of around 10 mm. या। ये 100 mm का जो है ना प्लेट हो गया. ये क्या है? We can see share. Don't show again. This is also, and this is a 100 mm plate. This is a plate M, and all these dimensions are given for radius, so and so. And then chamfer, or else a chamfer, it can be defined like this, around 10 by 45. So all these parameters are given. Distance also be given. This distance. So all the parameters given, and I want to cut this plate. Okay, so from this 100 by 100 mm plate. So this is the 0, 0, and the tool from home position. This is the end mill cutter. ऐसा रहता है end mill. There is a 1, 2, 3, 4. Suppose 4 flute रहेगा end mill का. That's the end mill cutter. End mill cutter. And this is the holder. तो ये जो कटर का डायमीटर हैव अराउंड 10 mm, या I will take it as around 8 mm लेता हूँ. 8 mm का end mill. So this end mill will start to, this is my starting point, यहाँ पे आएगा, and then यहाँ से फिर ये ऐसा जाएगा, ऐसा कट करेगा प्लेट को. यहाँ से स्ट्रेट ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा.
यहाँ पे एंड होके फिर ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा. So this plate would cut with this. This is called a profile milling. Profile milling operation, or we call it as a counter mill. Counter mill. And in this, we have to select the feed. Feed जो है मैं दूंगा around 80 mm per minute. 80 mm per minute. इसके बाद speed that is around 1500, and tool diameter is 8 mm लिया. Then if it is this plate has got around 5 mm thickness, 5 mm thickness का कट करना है. Sorry, ये 5 mm का thickness, या जस्ट ओनली 1 mm कट करना है तो 1 mm का 5 टाइम्स कट करना है. डेप्थ ऑफ कट इज 1 mm. डेप्थ ऑफ कट इज 1 mm, मैक्सिमम 1 mm. तो 5 टाइम्स जो है ना कट करना है इसे. इसके बारे में आपको क्या मालूम है? हम्म. किधर सर 5 को कट करना है? ये प्लेट जो है ना 5 mm ऐसा कट करना है, एक एक mm करके कट करना है डेप्थ ऑफ कट में. ये मैंने फ्रंट व्यू इधर बनाया. हाँ उसका टॉप नहीं, वो एंड में लगा के कट अच्छा करना अच्छा. पड़ता है उससे। हाँ एंड मिल से. ठीक है, मैं टॉप में दिखाता हूँ उसको. ये प्लेट हो गया ऐसा. तो ये है 5 mm का. हम्म तो यहाँ पे डैश डैश आएगा, इधर डैश डैश आएगा. पहले ठीक है नहीं. फेसिंग करना है उसको। हाँ फेसिंग फेसिंग करके करना है, लेकिन फेसिंग तो अभी नहीं सिखाया मैंने. तो पहला तो डायरेक्टली प्लेट को जो है ना ऐसा कैसे कट करना है देखना है. फेसिंग करना है तो देन यही टूल जो है यहाँ हम्म से इधर आएगा, फिर यहाँ से फेसिंग के लिए यहाँ से जाएगा, फिर जाके जिग जैग में ऐसा फेसिंग करेगा ऊपर. तो 0.5 अच्छा। mm का फेसिंग कट करेगा मेरा. हाँ तो प्रोफाइल कट के लिए एंड मिल यूज करके कट करना पड़ता है। हाँ जी, यू आर राइट. ऐसा कट करना है. टूल फिर यहाँ से फिर होम पोजीशन में आके ऊपर चला जाएगा. So this distance, the consecutive distance between the two path, this is what step over. Step over is a half of the diameter. Step over कितना रहेगा? Half of the diameter. और फेस मिलिंग का कटर अलग रहेगा. फेस मिलिंग कटर का जो है अराउंड, फेस मिलिंग कटर जो है that will be having like this. ये इंसर्ट रहेगा ऐसा हम्म 4 या 5 का. और ये टोटल डायमीटर जो है ना अराउंड 40 mm डायमीटर का जो है ना कटर रहेगा. दिस इज इंसर्ट. अराउंड 4 और 5 6 इंसर्ट रहेगा, नंबर ऑफ फ्लूट. और फेस मिलेंगे 40 mm डायमीटर का जो है ना ऐसा जाएगा, फिर 40 mm है तो मतलब दो ही कट में कट कर लेगा. 40 40 80 mm हो जाएगा, 3 कट हो जाएगा ऐसा. 3 पासिस में जो है फेस मिलिंग होगा. तो हम फेस मिलिंग और प्रोफाइल करेंगे. मैं पहले सोचा था ओनली प्रोफाइल पहले करके दिखा दूँ ऐसा. फिर आप फेस मिलिंग भी बोल रहे हो तो फेस मिलिंग भी करेंगे. ट्रेनिंग के हिसाब से मैं पहले प्रोफाइल लेना चाहता हूँ. ठीक है. सो आई विल एंड दिस. सो व्हाइट बोर्ड क्लोज कर दिया मैंने. ओके F9 से एक्सिस को ऑन कर लिया. देन to create, then from the center
सेंटर, एंकर द सेंटर। यहाँ से 100 by 100 का जो है प्लेट बना लेंगे। ठीक है। एंड देन विद ऑफसेट, ऑफसेट कमांड जो है ना यहाँ पे मिलेगा। ऑफसेट इज ऑफसेट चेन एंड दिस। तो ऑफसेट करते हैं इनसाइड दिस टूल। 25 है, वो हम अराउंड 20 कर लेंगे। 20 भी बहुत हो जाएगा। 15 करेंगे। ओके, देन दिस 15, दिस, ओके, देन यहाँ पे एक सर्कल था इधर ऐसा कुछ, उसका डायमीटर अराउंड 20 रखते हैं, या 25। फिर यहाँ पे चाम्पर लेते हैं। चाम्पर कमांड से जो है डिस्टेंस 5 अराउंड 10 mm लेंगे। यस, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, 45 डिग्री में। तो ये और इसमें एक चाम्पर मार देंगे। देन यहाँ पे हम फिलेट करेंगे। यहाँ पे फिलेट कमांड से फिलेट लेंगे। फिलेट अराउंड 15 mm का। यहाँ पे फिलेट, यहाँ पे हम चाम्पर मारेंगे चाहिए तो और थोड़ा सा कम रेडियस में। रेडियस अराउंड 6 mm का मारेंगे। और यहाँ पे रेडियस या सर्कल का रेडियस मार के लेंगे इधर अराउंड 25 तक। हम्म। उसके बाद डिलीट कमांड, डिवाइड से जो है ना ये डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड करके निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी चाम्पर मार के लेंगे। चाम्पर 8 mm का करके लेंगे। ठीक है। हाँ। सो टॉप व्यू में बनाया और इसको आइसोमेट्रिक में रखेंगे। पहला जो है ना जस्ट 2D प्रोफाइलर कट करेंगे। हम्म। सो मशीन में जाने का, ओके, गो टू मशीन and ओके। then milling operation, select the default machine, like any type of machine, whether it is a Mitsubishi or else a Pano control, Siemens control, या जो भी मशीन है आपको उसके हिसाब से जो है ना लिस्ट से सेलेक्ट करना है। लिस्ट में हम्म। जाके आपको वो फाइल डायरेक्टरी में जाना है और आपके मशीन का जो है ना ड्राइवर रहेगा तो इधर से वो CNC मशीन का ड्राइवर सेलेक्ट करना है। ठीक है। ओके। और अभी हम जो है ना डिफॉल्ट से लेके करेंगे तो गो टू मिलिंग ऑपरेशन, डिफॉल्ट फैनो कंट्रोल के हिसाब से। देन here you will find the various command, okay, in this counter milling or face milling, then dynamic milling, drilling operation, pocket operation, slotting operation, and engraving, then chamfer, then circular mill for helix bore, threading। ये सब टूल जो है ना VMC मशीन में ऑपरेशन के लिए लगेगा जो अभी मैंने बताया। दिस आर फॉर द 2D प्रोफाइल। देन 3D मॉडल पॉकेटिंग एंड डाई मेकिंग करने के लिए रफिंग ऑपरेशन, देन फिनिशिंग ऑपरेशन, दिस वन। तो हमें फर्स्ट ये सीखना है। दिस आर द वेरियस टूल और मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ मैं आपको। हम्म। तो आज का जो सेशन में हम सीखने वाले हैं दैट इज काउंटर मिलिंग या प्रोफाइल मिलिंग। सो कैन यू सी द स्क्रीन? मास्टर कैम दिख रहा है आपको? यस। सो काउंटर मिलिंग में जाना है। ठीक है। काउंटर मिलिंग में वायर फ्रेम चेनिंग दिख रहा है। हाँ सर। दिस वायर फ्रेम चेन जो है ना दिस इज फॉर any 3D object when you are creating for no projection or else selecting the wireframe, then this will appear, that is chaining। तो इसमें जो है 3D ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है क्योंकि ये आइसोमेट्रिक में ऑब्जेक्ट है तो 3D में है, बट 2D ड्राइंग है ये।
ठीक है, तो एज पर द कंस्ट्रक्शन प्लेन सेलेक्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर में रहना चाहिए वो, अदरवाइज 3D में रहा तो इजीली सेलेक्ट होगा। ठीक है, हम्म। इसके बाद आपको सेलेक्ट इधर क्लिक करना है, दिस इज अ एज। मैं एक मिनट नेक्स्ट स्टेप में चला गया कि हाँ, दिस वन वायर फ्रेम में इधर सेलेक्ट करना है, वो सॉलिड मॉडल में सेलेक्ट हो गया है, और वायर फ्रेम में लेना है और ये चेन मेथड पे इधर क्लिक करना है। उसके बाद ये देखो, ये प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे ना तो ये चेन सेलेक्ट कर लिया, देखो डायरेक्टली इट विल सेलेक्ट एंटायरली। If there is any branches in between, then it will stop over there. Again, you have to click according to the direction where you want. And then you have to select this closed loop. This entire closed loop you have to select. ओके। सो काउंटर में जाना है, बाद में ये वायर फ्रेम चेन मेथड सेलेक्ट होगा, इसको वायर फ्रेम में ये फर्स्ट ऑप्शन ऑन रहना चाहिए, 3D ऑब्जेक्ट ऑन रहना चाहिए, एंड देन चेन। देर इज अ पार्शियल, मतलब यहाँ से इतना ही सेलेक्ट करना है तो पार्शियल। इफ यू वांट टू सेलेक्ट विद द विंडोज एरिया, क्लिक हियर एंड देन सेलेक्ट विंडो वाइज। सो नॉर्मली वी यूज द फर्स्ट ऑप्शन चेन। डायरेक्शन चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, इधर रिवर्स डायरेक्शन ये साइड में है, आपको ये साइड में चाहिए तो इधर क्लिक करना है। अभी हम according to the requirement, the profile has selected, then no need to select any other options, and then click on OK. So once you select on the OK, then you will get another dialog box that is called a 2D tool for a counter mill. So in this tool type has already selected, that is counter. So then counter profile, we are going to cut the plate according to the profile, according to the geometry, whatever the shape and size we want, we can cut the plate. And this is basically required for sheet metals. Sheet metal work, anything you want to know, sheet metals, you can do this operation. Or else any plate which is having a particular thickness of 5 mm, 10 mm, then also you can do the profile milling, and according to the depth of cut. Okay, number of depth of cut will be increased. Here we are going to cut for a very simple thin surface plate, that is sheet metal. The next step, you have to select the tool holders. So as I said, you have to select the end mill. So there are two options here. You can select by just to place the cursor in this area, in this region. Here you can place in this area. Can you see this arrow which is highlighted? Right यस click सर। here. Once you right click, then create tool. This is one method. Or else you can select from the library here. This or else from here, select library. Click on this, select the library or here or here. When you click on the library, you will get the list of the various types of tool holders. From this list, you have to select the end mill. Just scroll here and select here end mill. So flat end mill from 3 mm diameter, that is 213 tool number 2 up to 223. Up to 3 mm is minimum diameter to maximum around 20 mm diameter tool. And its shank length is 33 mm, okay, from 10 mm. So as I say though, to select around 6 mm or 8 mm diameter. So I'm going to select the flat end mill 8 mm diameter. Once you select this, say OK. You will get the parameter over here, and then it will display in this list. That is a tool number, that is 217. But on ATC, not 217 tool number, it's use a different number. So you can change here. Go back to this tool here at bottom, tool number, say tool number 5. Okay, so when you select this, it will change automatically tool offset length and diameter length. So tool number is 5. Then tool diameter is 8 mm. Then feed, you have to change the feed from 2982 around 80 mm or 100 mm. That is the feed. 100 mm per minute is the feed. सर मैं लॉस्ट हो गया सर, फिर से बता सकते हैं क्या? पहले वो Mhm. काउंटर को हमने यूज किया, Mhm. उसके So बाद tool type हाँ। counter.
करेक्ट है। एंड देन सर वो टूल नाउ। कैसे पता चलता है सर काउंटर यूज करने, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है ना सर उसमें। किधर है ऑप्शन, बहुत सारे हैं। लाइक उसमें काउंटर है, ड्रिल है, फेस है, हाँ, बट हमें तो पील भी है। अभी काउंटर क्यों सेलेक्ट करना है अपना, अकॉर्डिंग टू द जॉब, नो व्हाट ऑपरेशन आई एम गोइंग टू create that the programmer and job setter know. ओके। So here this plate, I want to cut this plate according to this profile. मुझे ये सब मटेरियल निकाल देना है, and I ओके। want the final shape of the sheet like this according to हम्म। this design. So I ओके। want this, and then a tool which will be moving according to the either a tool nose radius compensation towards left side, tool nose radius compensation towards the right side. टूल जो है ना, हम्म। ये 8 mm का टूल mm अंदर से जाएगा, तो देन 8 mm this side, 8 mm minus this mm, 8 mm 8 mm minus, then ओके। I won't get the exact this length. Okay, हम्म। so if I'm going to pass the tool towards the left side from the outside like this, यहाँ से कट होगा तो मुझे ये लेंथ एग्जैक्टली मिलेगा, ये लेंथ जो है ना मिलेगा. सो इफ ओके। आई एम गोइंग टू पास द टूल along with the center point, ठीक है, आई विल शो यू विद द पेंसिल. सो टूल, जस्ट see there's when the tool, it will move from the home position at a यस। distance of around 25 mm above that this that is called a retract distance. यहाँ से हम्म। ये फेस का डिस्टेंस जो है अराउंड एक 25 mm रहा समझो. तो यहाँ से टूल जो है ना सीधा इधर जाएगा, यहाँ से फिर इधर उतरेगा. ठीक है, यहाँ पे जो है ना ओके। टूल इधर इधर से कट करना है, या इधर जो है ना 8 mm अंदर की तरफ से, या अंदर सेंटर से, दैट इज 4 mm ये साइड में 4 mm. दिस थ्री ऑप्शंस always you have to decide that the tool has to move from outside or inside or a neutral from the center. इससे क्या ओके। होगा कि टूल का डायमीटर 8 mm का वो डिफरेंस जो है ना आपके जो ये लेंथ के ऊपर उसका जो है ना इफेक्ट रहेगा. इसका एंड रिजल्ट क्या रहेगा, इफ आई एम गोइंग टू मूव दिस 8 mm इनसाइड दिस, देन 8 mm कम रहेगा, इधर से 8 mm कम रहेगा. फिर हम्म। सपोज ये लेंथ जो है ना मेरा 30 mm, इधर से 15 15 निकाला है तो 70 mm का लेंथ है ये. हम्म। तो आपको 70 mm चाहिए तो टूल जो है ना बाहर से मूव होना चाहिए, कटर विल बी मूव फ्रॉम दिस साइड लाइक दिस. हम्म। If I want to move inside, then I will get this length. कटर इतना जा रहा है ना, तो ये लेंथ मिलेगा मुझे आउटकम, दैट इज एंड रिजल्ट ऑफ द प्लेट. सो कितना रहेगा, 8 और 8 माइनस कर दिया 70 में 16, तो 56 हो जाएगा, 54 हो जाएगा. फिर ये प्लेट मेरे को 54 मिलेगा. मुझे 70 mm का प्लेट चाहिए इतना लेंथ, या 54 चाहिए. 70 mm चाहिए ना। हाँ 70 mm चाहिए, तो टूल जो है ना यहाँ से बाहर से जाना चाहिए. क्लियर. तो हाँ। वो जो डिस्टेंस है हमें इधर काउंटर में पहले से डिसाइड करना है आपको कौन सा ऑपरेशन करना है. इसमें से आपने पूछा है कि काउंटर, पॉकेट, ड्रिल, देन फेसिंग, स्लॉटिंग, इतना ऑपरेशन है, मैं कौन सा लूँ, दैट वाज योर हम्म। क्वेश्चन. हम्म। तो इसीलिए जो है ना आप ऑपरेशन क्या करने वाले हो, कितना कट करना है वो आपको मालूम रहा तभी तो ये ऑपरेशन में टूल सेलेक्ट करोगे ना, कौन सा ऑपरेशन सेलेक्ट करना है. ओके। आपको डिसाइड करना है वो कि मुझे प्लेट ऐसा कट करना है, या नहीं तो यहाँ पे ड्रिल मारना है, या ऐसे अंदर का मटेरियल निकालना है, पॉकेटिंग करना है इतना सारा. ओके। सो आई वांट टू कट ऑल दिस मटेरियल फ्रॉम इनसाइड दिस, ये इतना जो है ना मुझे डेप्थ में निकालना है ना, इतना मटेरियल निकालना है, तो वो पॉकेटिंग होगा, फिर उसको पॉकेट बोलेंगे. ओके। ऐसे एक एक करके आप ऑपरेशन सीखते जाओगे. या आपको ऐसा प्रोफाइल जो है ना ऐसे कट करना है साइड से, तो इसको काउंटर या मिल यानी तो पॉकेटिंग बोलेंगे, सॉरी काउंटर मिल या प्रोफाइल मिल बोलेंगे. ठीक है और सर। सपोज आपको बाहर से भी कट करना है, रेक्टेंगुलर प्लेट में कट करना है, तो ऐसा भी कट कर सकते हो, हाँ। है ना, दैट इज अ प्रोफाइल या कट. एंड देन यहाँ पे जो है ना फ्लैज में इधर एक होल मारना है, इधर एक होल मारने का, इधर एक होल मारना है, इधर एक होल मारना है, तो फिर ड्रिलिंग ऑपरेशन, रिमर हम्म। ऑपरेशन, देन टैपिंग, थ्रेडिंग, फिर इसमें मुझे टैप्स भी चाहिए. ओके। तो अंदर से टैपिंग किया, तो पहला ड्रिल मारना है, बाद में रिमर करना है, बाद में टैपिंग करना है.
ऐसा सीक्वेंस में 3 ऑपरेशन से ऑपरेशन बनेगा। तो ऐसा हाँ, प्रोग्रामर या ऑपरेटर को डिसाइड करना है जो प्रोग्राम जो बनाएगा। ओके। और अभी मैं कैसा डिसाइड करूंगा, व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन, देन विदाउट नोइंग दिस you can't decide, no? So that is your learning, this is the learning process. ओके। And as you move on learning the various methods, that is face milling, profile milling, pocket milling, drilling operation, then radial milling, then parallel milling, project milling, pencil milling, leftover milling, ऐसा जो है ना अराउंड 25 प्लस कमांड सब सीखने के बाद then you have to decide which operation to do for the job which you get ओके। as per the drawing, as per the component, as per the model। तो उसके हिसाब से डिसाइड करना है। तो ये अभी ठीक तो है। हमें एक कोई भी एक ड्राइंग लेके हम अभी, मैंने बताया कि प्रोफाइल मिलिंग करना है। तो हम प्रोफाइल मिलिंग क्या होता है वो उसके बारे में आपको सीखना है। ठीक फिर है आपको सर। आइडिया आएगा कि मैं प्रोफाइल मिलिंग कोई भी कंपोनेंट में प्रोफाइल मिलिंग कहाँ यूज करना है। देन दैट इज योर starts with your creativity and then your ideas, then you have to apply it. And according to the job, according to the sheet metal, according to the component part for mechanicals, then any automobile industry or production industries में ये help होगा। अभी हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, so I'll do the undo, delete all this thing. So we are here that the selecting the tool type, that is counter, we have to select here, that is counter, that is profile mill, then tool पे जाना है, second option यहाँ से this dialog box tool, and यहाँ पे राइट क्लिक करके select tool library में जाके यहाँ से मैंने ऐसा स्क्रॉल करके एंड मिल लिया मैंने। एंड मिल जो है ना यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे मिला, दैट इज एंड मिल। ओके। ऐसा देखो एंड मिल दिख रहा है इधर, एंड मिल एंड मिल एंड मिल, उसको फ्लैट एंड मिल भी बोलते हैं या एंड मिल भी बोल सकते हो। 3 mm मिनिमम है, मैक्सिमम 20 mm तक है। तो हमने 8 mm का डायमीटर का ये सेलेक्ट किया ओके। और ओके किया यहाँ से। ओके, अभी मैंने ऑलरेडी ठीक है सेलेक्ट सर। किया हुआ है तो इधर आए 8 mm डायमीटर एंड एंड मिल दिख रहा है, ये एंड मिल 8 mm डायमीटर, डायमीटर 8 दिख रहा है, लेंथ 13 है। और इसको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, कस्टमाइज करना है तो डबल क्लिक करो और उसके बाद डबल क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और कटिंग लेंथ जो है ना आप इसको 50 कर सकते हो एंड ओवरऑल लेंथ को आप 100 कर सकते हो। ऐसा बढ़ा सकते हो, कस्टमाइज करना है तो टूल का साइज बढ़ाना है, पेपर एंगल वो सब है इसमें। देन नेक्स्ट, टूल का नंबर इधर दे सकते हो, प्लंज रेट, स्पीड, स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल स्पीड इट शुड बी 1500 and feed is around 100 या 80 mm। तो ये दे दिया मैंने फीड, स्पिंडल स्पीड। उसके बाद टूल का डायमीटर, सॉरी टूल नंबर, टूल डायमीटर हमने प्रीवियसली दे दिया इधर 8 mm कटिंग डायमीटर। फिनिश करने का इधर से तो हमने पैरामीटर देखो इधर लेंथ आ गया 50, टूल डायमीटर तो हम वही रख रहे हैं। तो ये सब पैरामीटर इधर जो सेलेक्ट किया वो इधर भी दिख रहा है बॉटम में, 8 mm डायमीटर, tool number here, feed here, spindle speed is given here। 1500 करना है तो 1500 चेंज कर सकते हो। ये हो गया टूल सिलेक्शन। पहला टूल टाइप लिया, दैट इज काउंटर मिल, दैट इज प्रोफाइल मिल, देन टूल नंबर लिया। उसके बाद टूल होल्डर, सो सेलेक्ट द टूल होल्डर फ्रॉम हियर। आपको कैसे टूल होल्डर चाहिए यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद कटिंग पैरामीटर्स, ओके, इन दिस कटिंग पैरामीटर एज I said no, like how to move the tool along with the outside or inside, that is the G41 or G42 and cancellation is G40, that is tool nose radius compensation। टूल जो है ना ये जो जा रहा है ये टूल ये यहाँ से जाना चाहिए कि इधर से जाना चाहिए। तो हमें जो है ना सेंटर से लेना है, सेंटर से तो ऑफ करना है तो वो सेंटर से जाएगा इधर। लेफ्ट से बाहर से जाना है तो वियर एंड लेफ्ट साइड, लेफ्ट। उसके बाद जो है बाकी का पैरामीटर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द टिप ऑफ द दैट पर्टिकुलर टूल होल्डर का टिप्स अप्लाई करना है या सेंटर से करना है, ये यहाँ से सेंटर से।
तो टिप से करना है। देन रोल शार्प, इंटरनल कॉर्नर राउंडिंग रेडियस 0 0। इंटरनल मतलब इसका कोई रेडियस नहीं है, एंड मिल है, शार्प कॉर्नर है, इसलिए 0 0 रहेगा। स्टॉक मटेरियल आपको रखना है 0.5 mm में, ये साइड में या ये साइड में, तो आपको देना है 0.5। तो 0.5 ये साइड में, 0.5 ये साइड। क्लियर। और मुझे कट जो है ना एग्जैक्ट एज पर द ड्राइंग कट करना है, तो 0 0। दैट इज अबाउट कट पैरामीटर। Then depth of cut. How much depth of cut you want to cut? Okay, step by step. Okay, that is called step depth. तो उसको बोलते हैं स्टेप डेप्थ को डेप्थ ऑफ कट। सपोज मुझे 0.5 mm में कट करना है, तो इधर 0.5 देना है। तो 0.5 mm में कट करेगा प्लेट, 0.5 पहला, बाद में दूसरा 0.5 ऐसा कट करेगा ऐसा प्रोफाइल। अभी मुझे डेप्थ ऑफ कट कुछ भी नहीं देना है, तो आप ऑफ रख सकते हो। ये मैं डायरेक्टली जो है यहाँ पे लिंकिंग पैरामीटर में जाना है, डायरेक्टली फ्रॉम द कट पैरामीटर डेप्थ ऑफ कट छोड़ के डायरेक्टली यहाँ पे लिंकिंग पैरामीटर जाना है। इससे पहले जो है ना 2 3 ऑप्शन है ना, ये जरूरत नहीं है। दैट इज द लीड इन लीड आउट, अभी जरूरत नहीं है। लीड इन लीड आउट मतलब टूल एंटर्स फ्रॉम द अप्रोच डिस्टेंस, दैट इज एंट्री टूल कैसा लेगा, रैम मेथड से लेगा या स्लाइंट या हेलिकल टाइप में एंट्री लेगा, उसके लिए लीड इन लीड आउट। लीड आउट इज लाइक एग्जिट, टूल बाहर एग्जिट होते टाइम में कैसे स्ट्रेट टूल ऊपर निकल के होम पोजीशन जाएगा, या आइदर इट विल कट and then after that it ends with the ramp angle of 10 degree or 5 degree or 17 degree something। तो टेपर में बाहर निकलेगा या स्ट्रेट वर्टिकल ऊपर निकलेगा, उसको बोलते हैं लीड इन लीड आउट। अभी हम लीड इन लीड आउट नहीं देख रहे इस ऑपरेशन में, ब्रेक थ्रू भी नहीं कुछ जरूरत। देन मल्टीपल पासिस मतलब ये जो है ना नंबर ऑफ पासिस जो है ना ऐसा बाहर कितना कट करते जाना है, उसके लिए वो भी हम नहीं यूज कर रहे हैं। देन लिंकिंग पैरामीटर इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिंकिंग पैरामीटर में जाना है। लिंकिंग पैरामीटर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स में दिख रहा है दैट इज रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट मीन्स आफ्टर हैविंग दिस ऑपरेशन हाउ मच द टूल विल कम अप, के कितना ऊपर तक आएगा, 5 mm 10 mm, वो आपको इधर डालना है। 10 mm करता हूँ अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। फीड जो है 10 mm से फीड भी शुरू होगा। सपोज 50 mm टूल ऊपर है, फिर 10 mm तक जो है फ्रॉम दिस, यहाँ से टूल 10 mm ऊपर रहा तो फिर धीरे से जो है ना ये पोजीशन में जाएगा, ये डिस्टेंस जो है ना हाँ जेड में 10 mm रहेगा, फिर वहां से फिर इधर आएगा, फिर यहाँ से कट करेगा ऐसा। सो दैट इज द पैरामीटर फीड, जहां से शुरू होगा। स्टॉक मटेरियल 0 0, ऊपर स्टॉक कोई रखा नहीं है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स एब्सोल्यूट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डेप्थ, कितना डेप्थ में कट करना है, तो -1 mm तक कट करना है मुझे, -1 mm। इतना पैरामीटर देने के बाद यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद ये टूल पाथ क्रिएट हुआ, और ये जो है ना लीड इन लीड आउट लिया है, ये हमें अंदर की तरफ नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो भी जो एक्सप्लोरर में जो है टूल पाथ, सॉलिड मॉडलिंग, प्लेन एंड लेंस या लेवल्स लिखा है, तो यहाँ पे जाने का दैट इज द टूल पाथ में। और वापस से ये जो है ना टूल पाथ क्रिएट हो गया, लेकिन टूल पाथ जो है ना अंदर की तरफ से गया है, इसको बाहर की तरफ लेना है, तो पैरामीटर में जाना है। और आउटसाइड के लिए जो है यहाँ पे पैरामीटर में लेफ्ट बोला है ना, इसको राइट बोलना है एंड ओके करना है। तो टूल अभी देखो बाहर से गया है ऐसा, पहले अंदर से गया था, मुझे अंदर से नहीं कट करना है। अंदर से कट करूंगा तो 8 mm जो है ना कम हो जाएगा, इधर से 8 mm इधर से 8 mm। ठीक है, अब फ्रॉम 70 mm, सो बाहर से टूल। और ये जो है ना इस तरह से ऐसा जा रहा है, बाद में ऐसा कट करेगा, और बाद में फिर यहाँ से ऐसा आके बाहर निकलेगा। सो दैट इज कॉल्ड लीड इन लीड आउट। तो लीड इन लीड आउट भी मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ऑफ करना है, लीड इन लीड आउट को ऑफ कर देंगे। सो डायरेक्टली अभी देखो लीड इन लीड आउट नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाहर से जो है ना डायमेंशन दिख रहा था। तो अभी ये
directly 10 mm का. So now after that, once you modify this, the tool passing to the outside, ये इस तरह से कट होगा. अभी हम इसको सिमुलेशन देखेंगे. सिमुलेशन के लिए जो है ना, यहाँ पे बैकप्लॉट पे क्लिक करना है. ब्लैक प्लॉट पे क्लिक करने के बाद अभी ये टूल जो है ना किस तरह से मूव होगा, आपको यहाँ से जो है ना रन करना है. और स्पीड को थोड़ा कम करता हूँ. जैसे स्पीड बढ़ाऊंगा ना तो फास्ट जाएगा. देखो अभी ये बाहर से टूल जा रहा है. देखो ये यहाँ से इधर. This is the profile cut along with the path at a distance of around 4 mm, and this will pass this path and it will complete over here. This is called a profile milling or else a counter milling. ये मेथड आप सीख लिया तो आप वर्क पीस कट करने का जो है ना एक प्रोफाइल सिंपल से जॉब आप इजीली बना सकते हैं. तो इसमें लीड आउट लीड इन मतलब लीड आउट लीड इन हाँ नहीं है, सीधा डायरेक्ट प्लंजर टूल आके लगा के सीधा चला जाता है. हाँ. सपोज लीड इन लीड उसमें आउट क्या होता है सर? चाहिए. उसमें यूजुअली डैमेज ज्यादा होता है क्या, कैसा है? हाँ, लीड इन लीड आउट जो है ना मैं ऑन रखूंगा ना तो वो टूल जो है ना आपको इधर से स्टार्ट होगा. देखो अभी देखो. नहीं सर, यूजुअली वो लीड इन लीड आउट क्यों करते हैं सर, वरना डैमेज हो जाए क्या दैट पार्ट? इज फॉर नो सेफर साइड से टूल को एंट्री करना है और धीरे से बाहर निकालना है, उसके लिए रहता है. हम्म. Lead in, lead out is always required when you have the complicated job, when you have this like a interpretation of any job in between. जो बीच में कोई ना कोई जो है ना बाधाएं आ रहा है या there is some interpret with some other operations in between, or if there is a jig and fixture in between, then I can use this particularly for ramp method or else straight the tool which entering. So yeah, depends on again according to the some, if there is an obstacle when you are doing this, then you can use the lead in lead out. Otherwise directly straight cut करेगा और सीधा ही करेगा. और लीड इन लीड आउट मशीन पे यूज करते हैं क्योंकि फॉर द सेफर साइड एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए उसके लिए. ओके. तो आपको लिंकिंग पैरामीटर में आप वो डाल सकते हो. इतना करने के बाद ओके करने का. और यहाँ पे हम प्रोग्राम देख सकते हैं. ये हो जाएगा आउटसाइड. देन इसको प्रोग्राम को जो है ना रन करके देखना है तो आप इधर से देख सकते हो. दैट इज सिमुलेशन एंड देन दिस इज अ लीड इन. यहाँ से ऐसा है टूल और ऐसा है कि टेंजेंटली लिया वो. ये टेंजेंटली लिया ऐसा आया. फिर बाद में यहाँ पे स्ट्रेट आया. फिर नीचे धीरे से यहाँ पे आके अंदर जो है ना 5 mm तक ऐसा स्ट्रेट नहीं गया. तो यहाँ से जो है ना आउटसाइड द वर्क पीस स्ट्रेटली इट विल कम अप टू द ओरिजिन हाइट का जो जेड एक्सिस का है. फिर वहां से धीरे से ऐसा आया आर्क ऐसा. दिस विल कट लाइक दिस एंड देन यहाँ से टेंजेंट ऐसा होकर ऊपर चला जाएगा. ओके. तो इस तरह से जो है ना प्रोग्रामिंग बनाने को आना चाहिए. अभी हम ये जो टूल पाथ जनरेट किया है दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल मिल और एल्स काउंटर मिलिंग. अभी इसका जी कोड एम कोड पोस्ट प्रोसेसर फाइल चाहिए जो फाइनल प्रोग्राम रेडी चाहिए हमें. प्रोग्राम हमें मैन्युअली नहीं लिखना है जैसे हम सीएनसी में लिखा था वैसा. तो यहाँ पे एक ही टूल है दैट इज जी कोड. यहाँ पे दिख रहा है G1. ठीक है, दिख रहा है इधर G1. इधर दिख क्लिक रहा है करने सर. का G1 पे. यहाँ पे क्लिक करने के बाद so once you click over here, okay, then overcome and edit and say okay. तो आपको एक नया जो है ना एक कोड एक्सपर्ट करके एक अलग से जो है ना ऐप ओपन होगा. यहाँ पे आपको जी कोड एम कोड का नोटपैड के फॉर्मेट में प्रोग्राम रेडी मिलेगा. तो here once I click on this G code M code, click here and then go to over write and edit.
So if it is a Fano control, there is, you can see here the Fano control. If it is some different control panels, we can select from the select the post processor from here and then say okay. So now it is started processing. I'll show you with the screen. So it is creating the post processor, and once it post processor starts, it will create that like this in text format, that is NC file, ncf.nc file mastercam. So this is the completer process for G code, M code. This is for counter operation. This is the program. So this program directly we can transfer to the VMC machine. तो ये प्रोग्राम रेडी हो गया। अभी इसको डायरेक्टली सीएनसी मशीन पे डालना है और हमें सीधा प्रोफाइल मिलिंग कट करना है। अलग अलग वर्कपीस के लिए अलग अलग ऑपरेशन करेंगे। समझा क्या यहाँ तक? समझ आया सिंपल सर। कैसे करना है। ये हाँ। मेथड को बोलते हैं काउंटर मिलिंग या प्रोफाइल मिलिंग। तो इसको, इस एग्जांपल को आपको जो है ना, एक ड्राइंग लेके ये सारा स्टेप्स को फॉलो करो, इसको प्रैक्टिस करना है। आर यू गेटिंग? आई एम गेटिंग सर। सो अभी तक जो बताया इसमें कोई डाउट है या क्वेश्चन है ना, वो लेते हैं, फिर बाद में एंड करते हैं। नहीं सर, अभी ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर मुझे थोड़ा बहुत। हम्म। हम्म। तो कोई भी एक ड्राइंग बनाना है और बाद में टूल पाथ जनरेट करके देखना है। यहाँ तक के स्टेप्स आ गया तो मास्टर कैम आपको इजीली आगे का स्टेप्स ले सकेंगे। ओके। सो आपको कंप्यूटर में मास्टर कैम डाल के लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आगे का देखेंगे। ठीक है। ओके सर, ठीक है। ओके, यस। So we'll meet on Monday evening then next. ओके सर, यस। Yeah.